ایک عقلمند انسان کا جو بوجھ ہوتا ہے اس کی اپنی ذات پہ ہوتا ہے، لیکن جو ایک بیوقوف شخص ہوتا ہے نا یا عورت ہوتی ہے، اس کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ دوسروں کے اوپر ہوتا ہے۔ جو بیوقوف ہے اس کے پاس عقل نہیں ہے، اور جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان ہوتا ہے۔ تو اسی حوالے سے میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ ایسی کچھ خوبیاں یا خامیاں آپ کے اندر تو نہیں ہیں جو بیوقوف لوگوں میں ہوتی ہیں، یا پھر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ بیوقوف ہیں لیکن جو کہ بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں آپ کے لیے، اور ٹاکسک بھی، اور آپ کو بھی اپنے ہی جیسا بنا سکتے ہیں، اور آپ کی جو مینٹل اسٹیٹ ہے اس کو بھی خراب کر سکتے ہیں۔ ان سے آپ کو بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے ساتھ رہ کے آپ بھی ان کے جیسے ہی ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں 7 اہم پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس کو آپ نے بہت ضروری سمجھنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ اپنے روزمرہ کے جو ڈیلی چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں وہ شیئر کروں گی، جو کہ میں اپنے گھر میں کرتی ہوں، اور ایک مزیدار سی ریسیپی بھی شیئر کروں گی، ساتھ ساتھ وہ بھی بنائیں گے، آپ اس کو دیکھیے گا، ٹرائی کیجیے گا، اور ڈسکس کریں گے اس اہم ٹاپک کو ساتھ ساتھ، تاکہ ہم بچ سکیں ایسے بیوقوف لوگوں سے جو کہ ہمارے ارد گرد بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے دوستوں میں بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر ہمارے سسرالیوں یا میکے میں بھی ہو سکتے ہیں، یہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں، اور ہر وقت کسی نہ کسی رشتے کی شکل میں موجود رہتے ہیں، جن کا ہمیں بہت آگے چل کر پتہ چلتا ہے جب یہ ہمیں مس گائیڈ کرتے ہیں، ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، یا ہمیں اس سے نقصان ہوتا ہے، تو پھر آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مختلف لوگوں کے مینٹل اسٹیٹ کو سمجھنا، ان کو دیکھ کر ان کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ پوائنٹ ہے میرا نیچرلی فولش۔ دیکھیں، 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو نیچرلی یعنی کہ فطرتاً جو ہیں وہ بیوقوف ہوتے ہیں، احمق ہوتے ہیں، یعنی آپ انہیں کچھ بھی سمجھائیں، کچھ بھی کریں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور ایسے احمق جو لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے صرف اپنی ہی کرنی ہوتی ہے، خاص طور پر اگر آپ کے ارد گرد قریبی رشتہ داروں میں ایسی عورتیں ہیں جو کہ انتہائی بیوقوف سی ہے، اس سے آپ کا بچنا بہت ضروری ہے، یہ آپ کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہیں، یہ اپنی منمانی کرتی ہیں، آپ انہیں کچھ بھی سمجھائیں، اپنے دماغ سے اپنے حساب سے چلتی ہیں۔ دوسری طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں یا وہ خواتین ہوتی ہیں جو کہ جن سے نادانستہ کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، تو وہ اپنی اصلاح بھی کر لیتی ہیں، جیسے غلطی سے، مطلب جان بوجھ کے وہ کوئی غلطی نہیں کرتی یا غلط کام نہیں کرتی، یا کوئی ان کا بیہیویئر ایسا نہیں ہوتا، بیوقوفوں والا، انسان سے مسٹیک ہو جاتی، اور پھر وہ اس سے سیکھتی ہیں، اپنی اصلاح کرتی ہیں، اور اپنی جو حالت ہے اس کو ٹھیک کرتی ہیں۔ لیکن جو پہلی قسم ہے نا، اگر اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ فطرتاً بیوقوف ہوتے ہیں، احمق ہوتے ہیں، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور اس ٹائپ کے لوگوں سے آپ نے ضرور بچنا ہے۔ وہ صرف اپنی سنتے ہیں، دوسروں کی نہیں سنتے ہیں، اپنی ہی سنائی چاہتے ہیں، چاہے وہ کتنی غلط بات کیوں نہ ہو، اور وہ آپ کے اوپر اس کو امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ آپ نے بالکل بھی ایسے لوگوں کو ان کے ساتھ نہیں رہنا، اور ان کے ساتھ آپ نے گیپ رکھنا ہے، فاصلہ دے کے رہنا ہے، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ جو بیوقوف اور احمق عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ صرف اپنی کرتی ہیں، آپ ان کی کتنی بھی اصلاح کی کوشش کر لیں، وہ بالکل بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرنی، اور یہ کام آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا۔ ان کا مثال تو ایسے ہے جیسے زندہ مینڈکوں کو ترازو میں تولنا، جو کہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ یہ صرف اپنی ہی سنتی ہیں، اور آپ کو اپنی سناتی جائیں گی، اور آپ کی دشمن بن جائیں گی۔ مطلب یہ کہ ہم ان کی اصلاح نہیں کر سکتے، آپ کوشش کریں، آپ درگزر کریں، اور ان سے فاصلہ دے کے رہیں، اور ان کو آپ بدل نہیں سکتے، اس چیز کو آپ نے سمجھ لینا اچھی طریقے سے۔ اب ایسے لوگوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ ہمارے بہت ہی قریبی ایک رشتہ دار ہیں، ان میں ایک اسی ٹائپ کی ایک خاتون ہیں جو کہ بہت ہی قریبی عزیزہ ہیں ان کی ایک عادت ہے کہ وہ صرف اپنی منمانی کرتی ہیں، اور اپنی ہی ہر بات منواتی ہیں، اور آگے سے آپ کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ تو پھر اس سچویشن میں کیا کیا جائے؟ اگر آپ بھی سچویشن میں ہیں تو دیکھیں، اس کا سب سے بہترین حل ہے نا، خاموشی۔ آپ خاموشی اختیار کر لیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں نا، آپ جب خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو یہ جھنجھلا جاتے ہیں، آپ کو پکڑ کے کہیں گے کہ بھائی آپ کو کیا ہوا، آپ کے ساتھ زبردستی بولنے کی کوشش کریں گے، اس حد تک بھی یہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہینڈل کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے، ان کے ساتھ پھر آپ ویسے ہی بیہیو کریں جیسے کہ یہ کرتے ہیں۔ یہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں اور بیوقوف ہوتے ہیں، تب ان کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، اور پھر تھوڑا سا ایک بیک فٹ پہ آتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ان کو ہینڈل کرنے کا یہی بڑا آسان اور پریکٹیکل طریقہ ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ میری خواتین اور بہنیں اس پہ عمل کیجیے گا، یقیناً فائدہ ہوگا، اور آپ مجھے دعائیں دیں گی۔ اب بات کرتے ہیں 3rd پوائنٹ کی۔
बेवकूफ़ औरतों और अहमक ख़वातीन की एक आदत ये भी होती है कि ये जब बीमार होती है ना, तो वो अपना इलाज नहीं कराती ठीक तरीके से, डॉक्टर के पास नहीं जाती। पहले तो ये झाड़ झंकार तावीज़ घंटों में पड़ जाती है, दाएं बाएं लोगों से मशवरा लेंगी, खुद डॉक्टर बन जाएंगी या दूसरों को भी इसी तरह के मशवरे देंगी और अपने केस को ना बिगाड़ लेती हैं। या तो पैसे बचाना चाहती हैं या फिर वो सेल्फ पिटी का शिकार हो जाती हैं, हमदर्दी के लिए करती हैं सब कुछ, क्योंकि अकल तो होती नहीं है, सर खाली होता है इनका। तो इस किस्म की औरतें अगर आपके इर्द गिर्द भी मौजूद है ना, तो आपने इनसे बचना है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, फोर्थ पॉइंट। अहमक औरतें जो होती हैं वो अपनी गुफ्तगू ही से पहचान ली जाती हैं, क्योंकि इनके जो अल्फाज होते हैं इनकी हमाकत के सबसे बड़ी दलील होते हैं। एक अहमक औरत जब भी अपना कोई काम की शुरुआत करती है ना, तो वो बगैर सोचे समझे बगैर ही करती है कि इस काम का अंजाम क्या होगा, और नुकसान उठाती है हमेशा। ऐसी औरतें जो होती हैं ना, वो हर किसी के ऊपर बगैर तहकीक के और बगैर जांच पड़ताल के अंधा एतमाद कर लेती हैं, और कोई इनकी जब तारीफ़ें करता है तो ये बिल्कुल फैल जाती हैं और बिल्कुल आपे से बाहर हो जाती हैं और लोगों की बातों में आ जाती हैं और नुकसान उठाती हैं। लोग इनकी झूठी तारीफ़ी करके इनको बहुत ही आसानी से जो होता है बेवकूफ़ बना लेते हैं। इसके अलावा ऐसी औरतों पे जब कोई मुश्किल आती है ना, तो ये कहती हैं कि ये तो सब अल्लाह की तरफ से, और जब अच्छा वक्त आता है तो ये कहती हैं कि तो सब हमारी ही जो है ना कोशिशों का नतीजा है, हमारी मेहनतों की वजह से हुआ है। जब इन पर फ़क्र या तंगदस्ती आती है तो ये नाशुक्रापन करती हैं, और जब गनी होती हैं तो समझती हैं कि ये जो है अब कभी भी इन पर बुरा वक्त नहीं आने वाला, और यहीं पर ये इनकी सबसे बड़ी गलती होती है। गरूर करना, जुल्म करना, ज़्यादती करना, बुखल करना, गुस्सा करना, अपनी ताकत और अपनी हैसियत का नाजायज़ इस्तेमाल करना, जो भी आए मुंह में आए वो कह देना, दूसरों का जो है जज्बात का ख्याल न करना, ये सब जो बेवकूफ़ी की अलामतें हैं। बेवकूफ़ औरतें दानस्ता या नादानस्ता ये सारे काम कर रही होती हैं और अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रही होती हैं। अगर वो पावर में है, घर में कोई बड़ी हैसियत पे हैं, तो वो ये सब कर रही होती हैं। और अगर आप इनके साथ नरमी से बात करें तो ये शेर हो जाती हैं, आपके ऊपर हावी हो जाती है। अगर आपसे सख्ती से बात करें तो ये ठीक हो जाती है। अगर ऐसी बेवकूफ़ औरतों के साथ आप सख्त रवैया अख्तियार करें तो ये मासूम और भोली भाली और सीधी और मज़लूम बन जाती हैं। अगर आप इनके साथ नरम रवैया अख्तियार करें तो ये आपके ऊपर हावी हो जाती हैं और सख्त किस्म का रवैया आपके साथ अख्तियार कर लेती हैं। देखें, ऐसी बेवकूफ़ टाइप की औरतों के साथ रहने से ना, अक्लमंद जो औरतें होती हैं उनकी भी ज़हनी हालत ऐसी हो जाती है। तो आपको ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपकी सराउंडिंग में इस तरह की औरतें हैं, माहौल में, घर में, इर्द गिर्द, तो आपने इनसे बचना है। और जिनमें ये सब अलामतें, निशानियाँ पाई जाती हैं ना, उनके साथ आपने एक डिस्टेंस दे के रखना है। एक बहुत मशहूर कहावत है, यकीनन आपने भी सुनी होगी, कि अहमकों की ना दोस्ती से बचो, क्योंकि जब वो आपको मशवरा देगा ना तो आपको नुकसान पहुंचाएगा, और अगर आपको कोई फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उल्टा ही आपका नुकसान हो जाएगा, और आपको फ़ायदा कुछ भी नहीं, उल्टा ही नुकसान होगा। हैबिट नंबर 5 ये है कि वो जो बेवकूफ़ जितनी भी औरतें होती हैं ना, वो हमेशा दूसरों की नकल तारती हैं। उनका अपना दिमाग तो कोई होता ही नहीं। जो कपड़े दूसरों को पहनते हुए देखती हैं वही खुद नकल करने लगती हैं। अपनी पर्सनैलिटी नहीं देखती हैं कि इन पर क्या सूट करता है, क्या नहीं करता। जो लोग अपने घरों में जो काम कर रहे होते हैं वही उनकी नकल करती हैं, और अपना दिमाग बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती। बस इनकी तवज्जो हर वक्त यही होती है कि दूसरों के घरों में क्या हो रहा है और लोग क्या कर रहे हैं। नतीजा क्या होता है कि अपनी ना कोई पर्सनैलिटी होती है, ना ही इनकी ज़िंदगी कोई मकसद होता है, बेमकसद ज़िंदगी होती है, और दूसरों की ज़िंदगी में बेमकसद वो टांगे ही अड़ाती रहती हैं, अपना भी नुकसान करती हैं और दूसरों का भी नुकसान करती हैं। तो ऐसी औरतों से आपको बच के रहना चाहिए। नेक्स्ट बेवकूफ़ औरतों की हैबिट ये है कि वो राज को अफ़शा करती हैं और अमानत में ख़यानत करती हैं, और लोगों के ज़ाती मामलात को ना सबके सामने जाकर बयान कर देती हैं। वो किसी का राज अपने पास नहीं रख सकती। अगर कोई अपना इन पर भरोसा करे ना और अपनी ज़ाती बात या अपना कोई भी दुख शेयर करे, तो ना वो उसको संजीदगी से लेती हैं, और ना ही संजीदगी से लेने की बजाय वो आगे भी फैला देती हैं, कभी गपशप के बहाने, कभी मजाक के नाम पर, और कभी तो जानबूझकर दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। ऐसी आदत ना सिर्फ उनकी अपनी साख को ख़राब कर देती है, बल्कि लोग भी फिर क्या करते हैं कि ऐसी औरतों पर एतबार करना छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसी औरतों का ना सबको एक ना एक दिन पता चल जाता है कि ये इधर की बात उधर लगाती हैं और कोई भी राज नहीं रख सकती। तो कोई भी इनके साथ ना कोई बात शेयर करता है और ना ही फिर इन पर कोई भरोसा रखता है। वो तो आपने सुना होगा ना कहावत के, हमारी बुराई सोच समझ के करना है, क्योंकि आप जिन्हें जाके बताते हैं ना वो हमें आकर बताते हैं। यानी किसी भी तरह से ना बात जो होती है घुमा के ना वापस आप तक आ ही जाती है, और आपको पता चल जाता है कि फ़लाँ बंदे ने हमारे लिए फ़लाँ बात की है।
तो जो अक्लमंद औरत होती है ना, वो अपना राज किसी को भी नहीं बताती। और कोई भी दूसरा जो उसको अपनी कोई अहम बात बताता है या अपना उसके साथ राज शेयर करता है, उसको कभी भी दूसरों के सामने बयान नहीं करती। तो बेवकूफ़ औरतों की ये पहचान है कि वो अपनी आप उसको कोई भी राज देंगे वो सबको बता देगी। आपकी कोई भी बात, खुशी, गम या आपसे शेयर करती वो हर जगह इसको फैला देगी। अब आते हैं हैबिट नंबर 7 की तरफ। बेवकूफ़ और अहमक औरतों की एक जो बड़ी सबसे निशानी है वो ये है कि वो ख़ुद को हर वक्त मासूम और सही साबित करती रहती हैं। अपनी गलती मानने की बजाय हमेशा दूसरों को कसूरवार ठहराना इनकी आदत होती है। अगर घर में कोई झगड़ा हो जाए, ऊंची चीज़ हो जाए, तो वो फ़ौरन दूसरों को इल्ज़ाम दे देती हैं, और अगर इनसे भी कोई बात बिगड़ जाए ना, तो ये कह देती हैं कि दूसरों का कसूर है, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। ये औरतें खुद को हर वक्त मासूम और बेकसूर साबित करने की कोशिश करती हैं। हकीकत चाहे इसके बिल्कुल बरक्स हो, और नतीजा ये निकलता है कि लोग इनकी बातों पर यकीन नहीं करते और ना ही इनकी इज़्ज़त बाकी रहती है। असल समझदारी तो ये है कि अपनी गलती को तस्लीम किया जाए, इससे सीख कर आगे बढ़ा जाए, और अगर इन्हीं को प्यार से या तसल्ली से समझाने की भी कोशिश की जाए ना, तो ये उल्टा ही नाराज़ हो जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर बर्दाश्त की भी कमी होती है, और मामूली सी बातों पर शोर शराबा और लड़ाई झगड़ा कर देना इनकी आदत भी होती है। तो इस तरह की जो अहमक औरतें होती हैं ना, इनकी सहबतों से बच कर रहना ही आपके हक़ में बेहतर होता है, क्योंकि देखिए, इल्म और अक्लमंदी का मतलब ये है कि सही चीज़ को सही नज़र से देखना और गलत चीज़ को सही जगह पर रखना। लेकिन एक अहमक औरत जो होती है ना, वो इनसे कोसों दूर होती है। वो सही चीज़ को भी गलत जगह पर रख कर भी ख़ुद को बड़ा आलम समझती हैं। इससे बड़ा इल्म वाला तो कोई है ही नहीं। आपने कई ऐसी ख़वातीन और कई ऐसे लोग देखे होंगे कि जो नमाज, रोज़ा, कुरान और इस्लाम के बहुत से अरकान जो होते हैं ना, वो तो बेहतरीन तरीके से अदा करते हैं, लेकिन जब हक़ूक़ अल-इबाद की बात आती है ना, तो वो इसके बड़े अल्लाह के जो है ना, वो बड़े नाफरमान होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग धोखा देने वाले, मुनाफ़िक़त करने वाले और दूसरों के साथ ज़्यादती करने वाले होते हैं। तो ये लोग ना दुनिया के सबसे बड़े अहमक लोग होते हैं, जिनको शैतान ने मजबूती से अपनी गिरफ्त में लिया हुआ होता है। ऐसे लोगों का शुमार भी अहमक तरीन लोगों में होता है। और ऐसे लोग अल्लाह के रास्ते में भी अगर ख़र्च करते हैं ना, तो वो बुख़्ल से काम लेते हैं, और अगर ख़र्च करते हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए, शोबाजी के लिए और अपनी वाह वाह करवाने के लिए करते हैं। तो देखें, अक्लमंदी ये है कि इंसान अपनी ख़ामियों को पहचाने और उनको पर काबू पाए और अपनी शख्सियत को बेहतर बनाए। दुनिया में बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं, लेकिन दानिशमंद वो है जो कि इन गलतियों से सीखता है, अपनी इस्लाह करता है और दोबारा इन गलतियों को नहीं दोहराता। तो ये सब आदत थी जो कि औरतों को बेवकूफ़ बनाती हैं, और बेवकूफ़ औरतों की ख़ास निशानियाँ हैं। आपने ये देखना है कि ये आपके अंदर तो नहीं है और आपके इर्द-गिर्द लोगों में तो नहीं है। इनको आपने जांचना है और कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों से आपने बचना है। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हैं, कोई भी पॉइंट आपको समझ में आया हो और आपको फ़ायदा हुआ है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों का भी भला हो। और इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी और अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।